ہوتا ہے. جب تک ہم پردے میں رہتے ہیں تو ہماری عزت باقی رہتی ہے, ہماری حیا باقی رہتی ہے, اور جب ہم پردے سے باہر ہو جاتے ہیں تو ہماری عزت اور حیا سب ختم ہو جاتی ہے. محترمہ خواتین اسلام, وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میری پیاری عزیزات, جو آج ماحول چل رہا ہے اور معاشرے میں جو حالات ہیں, میری پیاری عزیزات, مد نظر رکھتے ہوئے میں ماں کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ آپ میری اس گفتگو کو سماعت کریں گے. میری پیاری عزیزات, جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ماں کیا ہے؟ ماں کیا ہے؟ معاشرے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری پیاری عزیزات, ماں کے ساتھ جو ناانصافیاں اور ہماری غلط فہمیاں, ماں جیسی عظیم نعمت کو, عظیم دولت کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. اس کی شان کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ ماں کون ہے؟ ماں وہ ہے جو اپنے بیٹے کو خونے جگر پلاتی ہے. ماں وہ ہے جو اپنے بیٹے کو خونے جگر پلاتی ہے. ماں وہ ہے جو سردی کی رات میں گیلے بستر پہ خود سوتی ہے, سوکھے آنچل پہ اپنے اولاد کو سلاتی ہے. ماں وہ ہے میری پیاری عزیزات کہ ہر غم کو برداشت کرتی ہے لیکن اپنے اولاد پہ ایک غم آنے نہیں دیتی. میری پیاری عزیزات, جس طرح دنیا میں خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے نا, اسی طرح ماں باپ کے علاوہ کوئی ماں باپ نہیں ہے. آپ کسی کو بھی ماں باپ کہہ دو, لیکن جس نے پیدا کیا وہ صرف ایک ماں ہی ہے, اور جس کے ذریعے آپ پیدا ہوئے وہ صرف ایک باپ ہے. آپ دنیا میں کسی کو ماں کہہ دو, لیکن جو شفقتیں اس ماں کے آنچل سے ملا کرتی ہے وہ کسی کے آنچل سے نہیں ملتی. جو شفقتیں اس باپ کے لہجے میں ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی لہجے میں نہیں ہوتی. میری پیاری عزیزات, ماں کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے؟ بس یوں سمجھ لیجئے, جس طرح دنیا کا پالنے والا حقیقی پالنہار خدا ہے, اسی طرح مجازی پالنے والے ماں باپ ہوا کرتے ہیں. ماں دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے, اور اس عظیم نعمت کو لے کر معاشرے کے حالات ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمیں ماں کی کیا ضرورت, ہمارے پاس دولت ہے, ہمیں ماں کی کیا ضرورت, ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, ہمیں ماں کی کیا ضرورت, ہمارے پاس شہرت ہے, ہمیں ماں کی کیا ضرورت, ہمارے پاس فیکٹریز ہے, ہمارے پاس بینک بیلنس ہے, ہمیں ماں باپ کی کیا ضرورت. ارے نادان, تمہیں کیا پتا, تمہاری اوقات کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں اللہ کے پیغمبر کے بارگاہ میں لے چلتی ہوں. وہ پیغمبر جس کو رسول ہونے کا شرف حاصل ہے, اور وہ رسول جس کو کلیم ہونے کا شرف حاصل ہے, اور وہ کلیم جس کے جلال کا عالم تھا یہ تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو بال بدن کے اندر کپڑے سے باہر نکل جایا کرتے تھے. جب غصہ آتا تھا تو سر سے شعلوں کی شعاعیں نظر آتی تھی. وہ کلیم جس جب غصہ آتا تھا تو بڑی بڑی بات پر خدا سے لڑ جایا کرتا تھا. جب میرے آقا معراج پہ جا رہے تھے, موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی. آپ نے کیا دیکھا؟ موسیٰ خدا سے لڑ رہے ہیں, میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں گئے, کہا مولا یہ تیرا کون بندہ ہے جو تجھ سے لڑ رہا تھا؟ رب نے فرمایا محبوب وہ میرا موسیٰ ہے. کیا کہا؟ وہ میرا موسیٰ ہے جو کبھی کبھی اپنی ضد پہ آ کر مجھ سے لڑ بھی جاتا ہے. یہی موسیٰ کلیم اللہ جو اپنی ضد پر خدا سے لڑ جایا کرتے تھے, یہی موسیٰ کلیم اللہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد پہلی بار طور پہ جا رہے ہیں. والدہ کے انتقال کے بعد پہلی بار طور پہ جا رہے ہیں. حکم ہوا موسیٰ آج تمہیں سنبھل کر کے آنا ہے. موسیٰ آج تمہیں سنبھل کر کے آنا ہے, آج تمہیں اپنے جلال کو قابو میں کر کے آنا ہے. تم کہار کی بارگاہ میں آ رہے ہو, اونچی آواز میں نہیں. اے موسیٰ نیچے لہجے میں بات کرنا پڑے گا. موسیٰ آج تمہیں سنبھل کر کے آنا ہے, تو رب کی بارگاہ میں آ رہا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ یہ موسیٰ کوئی نیا طور پہ تھوڑی نہ جا رہا ہے, اس سے پہلے بھی گیا ہے, لیکن کبھی سنبھلنے کا حکم نہیں ملا, کبھی سنبھل کر آنے کی اجازت نہ ملی. لیکن آج آ کیا رہا ہوں کہ مجھے سنبھلنے کا حکم آ گیا ہے. اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس سے پہلے جب تو آتا تھا نا تو تیرے سر پہ ماں کا آنچل منڈراتا ہے, تیرے سر پہ ماں کا آنچل منڈرا رہا تھا.
लेकिन जब तू आ जा रहा है ना तो तेरे सर पे माँ का आंचल नहीं है, माँ की ममता नहीं है, तेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, तेरी माँ दुनिया से जा चुकी है। ऐ मूसा, तुम आए हो, हर बार आए हो, लेकिन जब तुम आते थे तो तुम्हारे सर पे माँ का आंचल मंडराता रहा है, लेकिन आ जा रहे हो तो तुम्हारे सर पे माँ का आंचल नहीं है। अगर माँ का आंचल होता ना तो तुम्हें संभलने का हुक्म न देते, तुम्हें संभल कर आने की इजाजत न देते, तुम्हें जलाल को काबू में करने की इजाजत न दे दिया जाता। ऐ मूसा, माँ का आंचल पे हट गया है, अब तुम्हें खुदा के कहर से डरना पड़ेगा, अब तुम्हें अपने जलाल को काबू में करना पड़ेगा, जलाल को काबू में करना पड़ेगा। अब तुम्हें अपनी आवाज को नीची करनी पड़ेगी। ऐ मूसा, अब तुम्हें अपने लहजे को बदलना पड़ेगा। जमाना को पता चल गया कि जब मूसा, जब एक अल्लाह का नबी बन जाए, मेरी प्यारी अजीजा, मूसा को कहा गया ऊंची आवाज में नहीं, नीचे लहजे में बात करना पड़ेगा। जमाना को पता चल गया कि जब एक नबी को माँ की दुआ की जरूरत पड़ सकती है तो हम जैसे गुनहगारों को सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। मोहतरमा खातिन इस्लाम, माँ का वो चेहरा जो एक बार निगाहों से उछल हो जाएगा तो दुनिया का अमीर से अमीर उसे खरीद नहीं सकता। दौलत वाला, सरवत वाला, दौलत पे नाज करने वाला, दौलत लाख खर्च कर दे, लेकिन माँ का चेहरा उसे नहीं ला सकता है। एक बार मिट्टी के अंदर ये चेहरा चला जाए तो फिर उसे वापस नहीं आ सकता। याद रखो मेरी प्यारी अजीजात, हजार दौलत होगी, इतने दौलत होंगे, बंगले होंगे, गाड़ियां होंगी, मगर माँ का वो चेहरा ना होगा। मेरी प्यारी अजीजात, करम की बरसात होगी पर माँ का चेहरा न होगा, हरम के जलवे होंगे पर माँ का चेहरा न होगा, सफा और मरवा वाली बरकत वाली रातें तो होंगी पर माँ का चेहरा न होगा। माँ वो एक अजीम नेमत है, जब एक बार निगाहों से चली जाए तो फिर मयस्सर नहीं होती, फिर तब महसूस करोगे हमने किस चीज को खो दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, अपने माँ बाप की इज्जत करो क्योंकि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर तुम्हें अपने माँ बाप को राजी करना है, अगर तुम्हें अपने माँ को मनाना है, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो अपनी माँ को राजी कर दो। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ये वो माँ है जो अपने बेटे की कभी भी बदनामी नहीं चाहती। माँ कभी अपने बेटे की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। माँ मेरी प्यारी अजीजात कभी अपने बेटे के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकती है। जमाना उसे डकैत कहे, चोर कहे, कुछ भी कहे, लेकिन जब उस माँ से पूछा जाता है ना कि तेरा बेटा कैसा है, तो हमेशा वो माँ मोहब्बत से कहती है मेरा बेटा तो चांद का टुकड़ा है। माँ इतना प्यार करती है अपने औलाद से। ऐ मेरी प्यारी अजीजात, हिस्ट्री में एक पाकिस्तान शख्स का वाकया है कि पाकिस्तान का एक शख्स था और उसने एक दिन अपनी वालिदा से कहा, माँ मुझे आपको घुमाने लेकर जाना है, माँ मुझे आपको आज तफरीह पे लेकर जाना है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसकी बीवी ने कहा था कि तुम्हारे माँ के खांसने से घर में नींद नहीं आती, तुम्हारी माँ की खांसी हमें चैन से नहीं सोने देती, अगर तुम हमें चाहते हो तो अपनी माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ाओ। मेरी प्यारी अजीजात, बाप का इंतकाल हो चुका था, तन्हा सिर्फ घर में माँ थी। बेटे ने माँ से कहा, माँ आज मैं आपको तफरीह पे लेकर जाना चाहता हूँ। माँ की मेरी प्यारी अजीजात दिल की कली कली खिल गई, अरे आज तो मेरे बेटे ने मेरे दिल का बड़ा ख्याल किया है। मेरे बेटे ने, मेरी प्यारी अजीजात, बहू आने के बाद ना माँ सिर्फ अपने बच्चे के छोटी छोटी खुशियों में खुश रहा करती है, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहा करती है। मेरे बेटे ने तो मेरे दिल का बड़ा ख्याल किया है, मुझे घुमाना लेके जाना चाह रहे। बेटा कहाँ लेकर जाओगे? बेटे ने माँ को गाड़ी पे बैठाया और उसके बाद जब माँ अपने बेटे के साथ बैठी तो बहुत दुआएं देती जा रही है अपने लाल को। माँ अपने लाल को दुआएं देती जा रही है पूरी गाड़ी में। मेरी प्यारी अजीजात, बेटा अपनी माँ को ओल्ड हाउस में जब लेकर गया, ओल्ड हाउस की सीढ़ी पे बैठा दिया और कहा, माँ ये वो जगह है जहाँ बूढ़े लोगों का बड़ा ख्याल किया जाता है। माँ यहाँ लोग आपकी खूब खिदमत करेंगे। माँ मैं आपको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ और जब आपसे मिलने का दिल करेगा ना माँ मैं आता रहूंगा। इतना सुनना था, माँ की ममता भरी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने आंचल से आंसुओं को साफ किया, बगैर औलाद था कुछ कह न सकी, इसलिए कि माँ अब
अपने औलाद से, अपने वजूद से बढ़कर प्यार करती है, उसके जुल्म की कोई हैसियत नहीं रहती। माँ बहुत ज्यादा अपने औलाद से प्यार करती है। बेटा ने कहा, माँ अब आपको यही जिंदगी गुजारनी है, जब दिल करेगा आपसे मिलने आया करूंगा। जब बेटे ने माँ को अल्लाह हाफिज कहकर जाने लगा, मेरी प्यारी अजीजात, माँ सिसकियां लेकर रो रही है। माँ अपने चेहरे से, मेरी आंचल से आंसुओं को पोंछ रही है और सिसकियां लेकर रो रही है। जरा सोचो तो सही, माँ को क्या याद नहीं आता होगा? माँ को वो सर्दी वाली रातें याद आती होगी जब बेटे को सूखे आंचल पे सुलाकर गीले बिस्तर पे सोया करती थी। माँ मेरी प्यारी अजीजात, बच्चा बीमार पड़ता था तो माँ कभी सुकून से बिस्तर पे नहीं सोती थी। मेरी प्यारी अजीजात, अगर बेटा भूखा रहता था तो माँ उसे मना मना कर लुक़मे खिलाया करती थी। माँ को क्या याद नहीं आता होगा? इतने में ओल्ड हाउस की औरतें आ गई, कहने लगी, माई अपना नाम बता दे। माँ ने अपना नाम बता दिया। माँ अपने घर का पता बता दे। माँ ने अपने घर का पता बता दिया। औरतों ने कहा, माँ अपने जरा लाल का नाम बता दे। जैसे ही लफ्ज़ लाल आया, लफ्ज़ बेटा आया, मेरी प्यारी अजीजात, माँ की चीखें निकल गई, लेकिन बेटे का नाम जुबान पर नहीं आया। माँ अपने बेटे का नाम बता दे। माँ ने चेहरे से, मेरी प्यारी अजीजा, आंचल से चेहरे को छुपा लिया और कोई जवाब नहीं दिया। इतने में बगल की औरत बोलने लगी, अरे छोड़ो ना, इसके बेटे ने इस पे ज्यादा जुल्म किया है, इसको ज्यादा तकलीफ दी है, इसलिए अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। इसका बेटा ज्यादा नालायक हो गया है। जैसे लफ्ज़ नालायक माँ ने सुना, बुढ़ापे की सारी ताकत को इकट्ठा कर दिया और कहा, खबरदार, जो तूने मेरे बेटे को नालायक कहा, तुम क्या समझती हो? मेरा बेटा यहाँ छोड़ कर गया है, इसलिए मैं नाराज हूँ और उसका नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन नहीं, सच्चाई तो ये है कि मेरा बेटा शहर में इज्जत वाला है। पूरा शहर मेरे बेटे को जानता है। अगर नाम ले लूंगी ना, मेरा बेटा शहर में बदनाम हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा। ओल्ड हाउस की औरतें कहने लगी, माँ तेरे बेटे ने तुझे यहाँ छोड़कर गया, फिर भी इतना प्यार है? कहा, हाँ, जो वो कर रहा है ना, जो वो कर रहा है, मेरा बेटा कर रहा है, वो उसका सलूक है, और जो मैं कर रही हूँ एक माँ का सलूक है। ऐ मेरी प्यारी अजीजा, जो खूने जिगर पिलाती है, बच्चे का जुल्म, बच्चा कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं होती। क्यों? कि माँ अपने वजूद से बढ़कर अपने लाल से प्यार करती है। मोहतरमा ख्वातीन इस्लाम, मेरी प्यारी अजीजात, याद रखिए, माँ से, दुनिया से माँ जाने के बाद ना, आपको कोई दिल से दुआ देने वाला नहीं मिलेगा। बहुत सी आलिमा मिलेंगी, आलिम मिलेंगे, पैसा लेकर लोग बहुत दुआएं देंगे, लेकिन जो दिल से दुआ देती है वो सिर्फ माँ है। जो बगैर लालच दुआ देती है वो सिर्फ माँ है। वो माँ कभी नहीं मिल पाएगी, वो माँ कभी नहीं मिल पाएगी। मेरी प्यारी अजीजात, उसके बुढ़ापे की जो झुर्रियां होती है ना, मेरी प्यारी अजीजात, उस दुआ में भी बड़ी ताजगी हुआ करती है। जब मेरी प्यारी अजीजात, मूसा की वालिदा दुआ करती थी ना, तो मूसा का जलाल, बहुत जलाली थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनके जलाल को भी माफ कर देता था। माँ का मुकाम कितना ऊंचा है। दुनिया की सबसे अजीम नेमत जो है वो माँ है, हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। माँ से मोहब्बत करें। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, माँ जाने के बाद